Hello, good evening. मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. हम आप सबको खुदा उनकी पाक हजूरी में खुशामदीद कहते हैं। Thank you for joining us. हम शुक्रगुजार हैं कि आपने आज शाम हमें ज्वाइन किया और आप खुदा उनकी हजूरी में मौजूद हैं कि सीखें। And we continue our studies on the Bible, God's amazing word. हम उसी तालीम को जारी रखेंगे जो कि हम पहले से इल्मुल किताब के बारे में सीख रहे हैं। So let's pray. आए हम दुआ करते हैं। There is one phone. एक्सुमी आई थिंक टू Exumi, yeah, यस yeah, 25028 यस। that's right. Okay, awesome. Let's pray. आए हम दुआ करते हैं। Father in heaven, we thank you once again as we come before the throne of your grace. ऐ खुदाम एक दफा फिर हम तेरी पाक हुजूरी के लिए और तेरे फजल के सामने झुकने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। First of all, we are so grateful to you for all the blessing you have given us. ऐ खुदाम सबसे पहले हम तेरे शुक्रगुजार हैं उन तमाम नेमतों और बरकतों के लिए ऐ खुदाम जो तूने हमें हमारी जिंदगी में बख्शी हैं। And we count this also a blessing to have this opportunity to study your word. और ऐ खुदाम इन तमाम बरकत के अलावा इस बरकत के लिए कि तूने हमें सीखने का ऐ खुदाम मौका दिया कि हम तेरे कलाम को सीखें, तेरे इल्हाम को सीखें। खुदाम हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। We commit this time of learning your word, studying your word in your mighty hand. ए खुदाम इस सीखने के तमाम ए खुदाम वक्त में ए खुदाम इस सारे वक्त को हम तेरी पाक हुजूरी और तेरे पाक हाथों में देखते हैं। And we pray that you enlighten our understanding and impart your wisdom. ए खुदा तू हमारी सोचों को उजागर और रोशन कर ताकि हम जो कुछ सीखें वो हमारे दिलों में बैठे और हमारी सोचों में महफूज हो। It would strengthen our faith. It would equip us to um, to answer the question people have or we have. ए खुदा तेरा कलाम जो हम सीखें वो हमारे जहन को इस काबिल बनाए कि हम उन तमाम सवालों का जवाबात देने के काबिल हों जो लोग हमसे करें। And even the question we have, those questions would be answered. और वो तमाम सवालात जो हमारे जहनों के अंदर उठे हम उनका भी जवाबात दे सकें। Thanक you for um, anointing us to learn your word. Thank you for your और anointing ए upon खुदा तो each हमें and अपने every one of पाक रूह us. से मस्सा कर ताकि हम तेरे पाक रूह की आगाही में ए खुदा सीख सकें। In your precious name we pray. तेरे कीमती और जलाली नाम में हम ये दुआ चाहते हैं। Amen. आमीन। So let me share my screen with you. और मैं चाहूंगा कि मैं जो स्क्रीन आपके सामने है उस पे कुछ आपसे बात कर सकूं। God's amazing word. खुदावंद का अजीम कलाम। Last week we were talking about um, the symbols of God's word. और पिछली क्लास में हम सीख रहे थे खुदावंद के कलाम के अलामात के बारे में कि खुदा का कलाम किन चीज़ों से मुशाबत रखता है। Uh, can you tell me anything about that? Any क्या symbol आप उन of तमाम God's के बारे word? में जो कुछ आपने पिछले जो Mhm. खुदा के कलाम के बारे में आपने सीखा कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे लिए चिराग की मानिंद है, इसी तरह से आप क्या मुझे बताएंगे जो कुछ आपने सीखा। Yes.
You got the hint from our dear sister. She is very kind to you. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Hmm. Yes, sir. Yes. Oh, no. We don't want to hear from you. Oh, No, okay, no, okay, no, sir. no, 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 Adil, no, Sir, please. one of the students, sir, Asif. Don't try. You have been listening that for last 4 years. Adil. Good evening. Okay. Thank you, sir. Hello, Asif. good evening. Good evening. How are you? I'm Asif Matu. Uh-huh. Yes, Asif. And in last class, we learned that through different words, that what is God's word like. So the first, it was like water. Water cleans and gives spiritual life. Okay, thank That you, is in brother. Thank you. Ephesians chapter 5, verse Okay. 26. Okay, thank you, brother. Then like Thank you. lamp. Okay, this is good. जी This is good. जी बहुत Here. शुक्रिया भाई. Salam. Thank you. Thank you, brother. Okay, anyone else? और Okay, so the word of God is like lamb. The word of God is like water. Okay, what else? खुदावंद का कलाम चिराग की मानीत है और इसी तरह खुदावंद का कलाम पानी की तरह है. और Mhm. इसके अलावा कोई भी जल्दी से बताए इसमें से. And then I will share my screen with you. I'm not going to share my screen before that. Anyone else? We have 13 people logged in, but we want to see who is going to tell us. The word of God is like lamp, word of God is like water, word of God is like what? हमारे साथ 13 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और 2 लोगों ने ये अभी हम खुदा का एक भाई कलाम ने जो है बताया वो कि जहाज के खुदा का लक्कड़ की कलाम. मानिंद है जो हमारी डायरेक्शन को चेंज करता है. Amen. Hallelujah. Thank you. Okay. Anything else? जी इसके अलावा खुदा का कलाम इंसानियत के लिए और हिकमत और रूहानी रोशनी के लिए अजमत खजाना है. Okay. Thank you. खुदा का कलाम असल में इंसानी तारीख नहीं बल्कि एक नबूवत है. Okay. What else? खुदा का कलाम बीज की मानद है, फल देता है. Amen. Thank फल you. लाता है. Yes. What else? Okay. खुदा का कलाम जो बाइबल में दर्ज है इंसानियत के लिए हदायत और सच्चाई और जिंदगी का सरचश्मा है. What else? खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है. ये हर इंसान के दिल और दिमाग को बदलने की कुदरत रखता है. Amen. Beautiful. Thank you. So here we were learning the word of God is like fire that purifies. और इसी तरह से हम खुदा के कलाम के बारे में सीख रहे थे कि खुदा का कलाम जो है वो आग की तरह है जो कि हमें तपाता और साफ करता है. The word of God is like hammer that breaks and make things in our lives. और इसी तरह खुदा का जो कलाम है वो हथौड़े की मानिंद है जो कि हमारी जिंदगी में से ऐसी तमाम चीजों को तोड़ता और अलहदा करता है और फिर हमें मसीह की सांचे में ढालता है. And it's like a mirror. और इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो आईने की तरह है. It's like a seed. और इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो बीज की तरह है. It's like water. खुदा का कलाम पानी की मानिंद है.
lamp. और खुदा का कलाम चिराग की मानिंद है। It's like sword. और इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो तलवार है। It's like food. और इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो रूहानी खुराक है। So today we are going to talk about inspiration of God's word. और आज जो कुछ हम सीखेंगे वो हम खुदा के कलाम की तहरीक के बारे में सीखेंगे। Open with me 2 Timothy chapter 3 and verse number 16 and 17. खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। And then I will have a side note and I will tell you what we are going to read. But let's read first 2 Timothy chapter 3 and verse number 16 and 17. हमारे पास जो स्लाइड आपको नजर आ रही है सामने स्क्रीन पर, यहाँ पे बहुत से हवाला जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस यहाँ से पढ़ेंगे दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 बाब है और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। The Bible says all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, That the man and woman of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। So here 2 Timothy chapter 3 and verse number 16 talks about scripture, the Bible. और इसी तरह से अभी हमने पढ़ा कि खुदा के कलाम में से दूसरा तिमोथेयुस के 3 बाब में 16वीं आयत में कि खुदा का जो कलाम है वो एक सहीफा है। Let's read. Before I go into explanation, I will like to take you to 1 Timothy 3:16. इससे पहले कि इसकी बकायदा मैं आपको डिटेल बताऊं, हम पहला तिमोथेयुस निकालेंगे And उसका 3:16. और 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखेंगे। And here we see, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angel, preached among the Gentiles, believed on in the world, and received up in glory. इसमें कलाम नहीं के दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रासबास ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन। So tell me what this Bible talks about. क्या आप मुझे बताएंगे कि बाइबल मुकद्दस किसके बारे में ये कहती है? Who was that who was manifested in flesh? और वो कौन है जो जिस्म में जाहिर हुआ? यीशु मसीह, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया So हालेलुया। here 1 Timothy 3:16 talk about Jesus Christ, the one who became flesh, the word who became flesh. और यहाँ पे जब कि हमने पहला तिमोथेयुस उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में देखा कि वो कौन है जो जिस्म में जाहिर हुआ और जाहिर हुआ, यानी ये खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि ये आयत जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में बताई गई हैं। And what is John 3:16?
और आप देखें कि यूहन्ना की इंजील उसकी 30 बाब उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। Tell me. जल्दी से कोई भी बताए। यूहन्ना 30 बाब उसकी 16वीं आयत बहुत ही खुदा ने ये दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए Amen. हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Wow. So you see here, 2 और Timothy 3:16, 1 और Timothy 3:16, John 3:16. और यहाँ आपने देखा कि दूसरा तिमोथियुस की 30 बाब उसकी 16वीं आयत में, और इसी तरह पहला तिमोथियुस उसका 30 बाब 16वीं आयत, और यूहन्ना की अंजील 30 बाब उसकी 16वीं आयत में एक ही शख्स के बारे में बताया गया है, और वो है खुदा यीशु अल मसीह। So first is the written word, the Bible, the scripture, and then we have the word that became flesh. और सबसे पहले जो खुदा का तहरीरी कलाम है वो दुनिया में पहुंचा, और इस तहरीरी कलाम के बाद बाकायदा से जो कलाम है वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा। Because the written word was the preparation of the word that will become flesh later. क्योंकि ये जो तहरीरी कलाम था असल में वो तैयारी थी उस बात के लिए जो कि बाद में वाक़या होने वाली थी, यानी खुदा का जो मुजस्सम कलमा है वो दुनिया में आने वाला है। और ये जो तहरीरी कलाम है ये एक तैयारी का के लम्हात हैं। And think about the order. John 3:16, 1 Timothy 3:16, 2 Timothy 3:16. और देखें कितनी जबरदस्त बात है और कितनी जबरदस्त ये तरतीब है जो कि हमने अभी देखी। यूहन्ना की इंजील उसका 30 बाब 16वीं आयत में, इसी तरह से पहला तिमोथियुस 30 बाब उसकी 16वीं आयत में, और फिर तीसरा हवाला जो अभी आपने देखा वो दूसरा तिमोथियुस 30 बाब उसकी 16वीं आयत में। So let's go back to 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. और आए हम दूसरा तिमोथियुस उसका 30 बाब और उसकी 16वीं आयत को देखते हैं। All scripture is given by inspiration. कि तमाम जो सहीफा है वो तमाम का तमाम खुदा की तहरीक से लिखा गया। So when we talk about inspiration, it means God breathed. यानी इसका मतलब ये है सहीफा क्या है, यानी कि खुदा का सांस है। And why did God give this word? Why did he give us the Bible? और सोचें कि क्या खुदा ने क्यों अपना कलाम हमें बख्शा और खुदा ने क्यों बाइबल मुकद्दस हमें दी। First of all, it tells for teaching. सबसे पहली बात कि खुदा ने अपना कलाम हमें दिया ताकि वो हमारे लिए तालीम की हैसियत रखे और हम इस तालीम को सीखें। And the teaching mean what is right. और जो तालीम है असल में ये सिखाती है कि क्या गलत है और क्या सही है। It tells us what is the truth. और खुदा का जो कलाम है यानी खुदा की जो तालीम है जो सच्चाई के बारे में हमें सिखाती है। Number 2, for rebuking. और फिर खुदा का जो कलाम है वो हमें इस्लाह हमारी करता है, हमें रास्तबाजी के बारे में बताता है। Okay, so rebuking, what is in Urdu we say that we read that all scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, for reproof. What is that word in Urdu language? और रिब्यूकिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मेरा ख्याल है ये फायदा मंदी के बारे में। No. Read that verse 16 again. ठीक है। Okay. हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और Here. इस्लाह इल्जाम Yes. Rebuking. और खुदा का जो कलाम है वो हमें इल्जाम के बारे में भी बताता है, यानी
इल्जाम, Okay, it means something is not right. जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गलत है और कुछ ना कुछ जो है जो सही नहीं है। And it exposes our rebellion, because a rebellion person want to do the wrong things, want to go against what is right. और इसी तरह से ये खुदा का कलाम जो है उन चीज़ों को वाज़िया करता है कि जो कुछ गलत जो कुछ गलत नहीं है, यानी एक ऐसा शख्स जो सही नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ों को कर रहा है जो कि खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, तो खुदा का कलाम उन चीज़ों को वाज़िया करता जाता है। Another word is God gave us his word for correction. और दूसरा जो लफ्ज खुदा का कलाम के बारे में बताया गया कि खुदा का कलाम क्या करता है, वो तरबियत के बारे में है। It's कि like खुद it's like parents are telling children this is wrong, and then और telling no, this is right. ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे वालदेन जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो वालदेन उनको बताते हैं कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये गलत है, And now you need to do things in a right way. और फिर वो उनको बताते हैं कि एक जो चीज सही है और उस गलती को दूर करके उनको सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, सही राह बताते हैं। तो खुदा का कलाम भी इसी तरह से हमारी करेक्शन करता है, तरबियत करता है। So the word of God is given us for correction. और खुदा का तहरीरी कलाम हमें बख्शा गया ताकि हम तरबियत को हासिल करें, It correct our mistakes. और खुदा का कलाम हमारी गलतियों को इस्लाह करता है। And number 4, the word of God is given to us for training. और इसी तरह से नंबर 4 पे जो हम देखते हैं जो नुक्ता खासकर खुदा के कलाम के बारे में, कि खुदा का जो कलाम है वो हमें हमारी तरबियत करता है, Yeah. Training in righteousness. और खुदा का कलाम रास्तबाजी की तरफ हमारी तरबियत करता है। So training is how to keep on doing the right things. और ट्रेनिंग और तरबियत ये है कि किस तरह से हम उन अच्छी चीजों को और रास्ते की चीजों को कर सकते हैं जो कि खुदा हमसे चाहते हैं। Wonderful. So what is the structure of the Bible? और अभी हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यानी बाइबल मुकद्दस में हम किन किन चीजों के बारे में हम जानते हैं। So the word of God has two parts. कि बाइबल मुकद्दस जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, We have the Old Testament and New Testament. यानी बाइबल मुकद्दस में पुराना अहदनामा है और फिर नया अहदनामा है। Remember, our New Testament is hidden in the Old Testament. लेकिन आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो नया अहदनामा है उसके अंदर पुराना अहदनामा जो है वो छुपा हुआ है, And Old Testament is explained in the New Testament. और जो पुराना अहदनामा है वो असल में वजाहत करता है नए अहदनामे की। So, Bible was written over the period of 1500 or 1600. और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस जिस अरसा में लिखी गई है तकरीबन 1500 साल या 1600 साल के दरमियान दरमियान ये लिखी गई। And then 40 different authors wrote God's word. और इसी तरह से 40 मुसन्नफीन ने बाइबल मुकद्दस को लिखा। God inspired 40 different authors to pen his word. और इसी तरह से 40 मुसन्नफीन को खुदा की तहरीक हुई और खुदा के रूह ने उनको उभारा कि वो खुदा का कलाम को तहरीक करें। They had different background. और ये उनके 40 के 40 जो मुसन्निफीन हैं उनके बारे में जो इनके जो हम पस मंजर है वो मुख्तलिफ है। Some were king, और कुछ ऐसे थे जो कि बादशाह थे, prophet, poets. और कुछ नबी थे और कुछ इनमें से शायर थे।
political leaders, और कुछ ऐसे थे जो के सियासी रहनुमा थे, कायदीन थे, tax collector. और कुछ ऐसे थे जो कि मसूल लेने वाले थे। Tax collector didn't have good reputation at that time. और जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने अहद में या पुराने वक्त में शुरू के अयाम में जो मसूल लेने वाले थे, इनके बारे में कुछ अच्छा ख्याल नहीं किया जाता था। But God changed their lives and wrote and helped them to write His word. और देखिए ये कितनी जबरदस्त बात है कि खुदा के कलाम ने उनकी जिंदगी को बदला और फिर वो इस काबिल हो गए, खुदा की तरफ से उनको तहरीक मिली और फिर उन्होंने खुदा का कलाम तहरीर किया। The Bible was written in 3 different continents: और बाइबल मुकद्दस जो है ये 3 मुख्तलिफ बड़े आज़मों के अंदर लिखी गई, Asia, और इसी तरह ये एशिया के अंदर, Africa, अफ्रीका के अंदर Europe. और यूरोप के अंदर। ये तीनों मुख्तलिफ बड़े आज़मों में बाइबल मुकद्दस को लिखा गया। And there were different settings, different situations, different circumstances. और इन तीनों जो बड़े आज़मों में ये बाइबल मुकद्दस को जब लिखा गया तो मुख्तलिफ तरह के हालात थे, मुख्तलिफ तरह के वाक़यात थे और मुख्तलिफ तरह के माहौल थे। For example, Moses wrote in the wilderness. और मिसाल के तौर पे मूसा ने जब इसको लिखा तो ये बियाबान में उसने इसको लिखा। John was on the island of Patmos. और यूहन्ना जो था वो पतमस के जजीरा में था जब उसने खुदा का कलाम तहरीर किया। The word of God is written in 3 languages: और खुदा का कलाम जो है ये 3 मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर लिखा गया, Hebrew, Greek, and Aramaic. यानी इब्रानी और यूनानी और अरामी के अंदर, इन तीनों ज़बानों के अंदर खुदा के कलाम को तहरीर किया गया। And the word of God has different kind of style. और खुदा का कलाम जो है ये जब लिखा गया तो इसके जो स्टाइल है मुख्तलिफ तरह से इसको लिखा गया। For example, here we find history. और मिसाल के तौर पे जब हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में हम तारीख के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ हिस्सा इसका तारीखी हिस्सा है, Poetry. और कुछ ऐसा है जो नसर या शायरी की तरह है, For example, Psalm. जैसे गजल की किताब है Okay. और ज़बूर की किताब है। Here we see law. और फिर हम देखते हैं कुछ ऐसा हिस्सा खुदा के कलाम में है जिसको शरीयत का नाम दिया गया। Here we see prophecy. It talks और about the things that will happen in future. और कुछ खुदा के कलाम में ऐसा हिस्सा बाइबल मुकद्दस में मिलता है जो कि नबूवती हिस्सा है, यानी आने वाले वक्त के बारे में वहां पे नबूवत हुई। So think about that. A book is written during the period of 1500 or 600. और सोचे कि जब एक बुक जो है लिखी गई, यानी कि ये बुक जो है खुदा का कलाम जो है ये 1500 से 1600 के दरमियान में इसको लिखा गया, In 3 languages, और 3 ज़बानों के अंदर, in 3 continents, और 3 बड़े आज़मों के अंदर इसको लिखा गया, 40 different authors, और 40 मुख्तलिफ तरह के मुसन्निफीन ने इसको तहरीर किया। but still it's so wonderful, orderly, coordinated, well coordinated book. और देखें कि 40 मुसन्निफीन ने इसको तहरीर किया, लेकिन क्योंकि खुदा का रूह एक है और खुदा के रूह की तहरीक से ये खुदा का कलाम लिखा गया, तो देखें कि इसमें किस तरह की एक मुसलसल अच्छी तरतीब है और मुताबकत है, और ये बुक जो है एक अच्छी तरह से मुताबकत रखती है एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि इसमें कहीं कुछ बयान किया गया या कहीं कुछ नहीं, क्योंकि रूह एक है। Sometimes, yeah,
Yes. Amazing, amazing. Sometimes one author writes something and the thoughts are scattered. और देखें कि कहीं पे हमें मिलता है कि किसी एक मुसन्निफ ने ये इसको लिखा, और लिखने वाले ने जो उसकी सोचें हैं, ये नहीं कि उसके मुख्तलिफ सोचों में ये उसने उसको ढाला है। यानी एक मुसन्निफ ने लिखा तो दूसरे मुसन्निफ ने जो कुछ लिखा वो पहले मुसन्निफ से मुताबिकत रखता है। Sometimes, generally speaking, that sometimes somebody writes something and sometimes the thoughts are so scattered. Things are here and there, but here 40 different authors write God's word, but still it's one book and so coordinated, so orderly. और देखें, जब कोई एक किताब लिखता है तो दूसरा उसको उसी के बारे में, किसी एक मजमून के बारे में लिखता है, तो हो सकता है कि वो जो चीज़ें हों बिखरी हों और चीज़ें जो है उसमें बयान की गई हों उसमें मुताबिकत ना हो। लेकिन चूंकि खुदा के कलाम में एक रूह के तहत, तहरीक के तहत लिखा गया, तो 40 मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने इसको लिखा। लेकिन ये जितना ज़बरदस्त खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा के रूह के तहत से ये लिखा गया, तो 40 मुसन्निफीन ने बड़ी ही तरतीब के साथ इसको लिखा। And it has only one message. और देखें कि इस पूरे के पूरे जो 40 मुसन्निफीन हैं वो मुख्तलिफ हैं, सोचे मुख्तलिफ, लेकिन वो एक ही पैगाम के बारे में और एक ही बात पे वो It is मुत्तफिक about हैं, God's love. और खुदा की मोहब्बत के बारे में। It has one theme, Jesus Christ, one central figure, Jesus Christ. और इसका जो वस्ती नुक्ता है, बुनियादी जो बात है, वो एक ही है, यानी यीशु अल मसीह। Amazing. और ये बहुत जबरदस्त बात है। We don't believe one man's revelation. और हम बिल्कुल एक शख्स के मुकाशफा पर यकीन नहीं रखते, Because I think in this way, not in one man's testimony is valid in the court. They और don't आप believe one man's testimony even in the court. How can we believe one man's revelation? और ये That is related to people's eternity. और ये देखें कितनी जबरदस्त बात है कि एक मुकाशफा पर हम क्यों ईमान नहीं रखते, इसलिए कि जो दुनिया की अदालतें हैं उनमें भी एक शख्स की जो गवाही है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती। फिर हम ये कहते हैं कि हम किस तरह से एक शख्स के मुकाशफा पर यकीन रख सकते हैं, बल्कि हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जो खुदा का कलाम है वो तसलीस का मजमुआ है, और खुदा का कलाम जो है अब्दियत रखता है। Okay, but how can I believe that the Bible is true? और सोचें कि हम किस तरह से यकीन करें और इस बात पे ईमान रखें कि बाइबल मुकद्दस है, वो सच है और सच्चाई है। It's a very important question. और सोचें कि ये बहुत अहम सवाल है जो अभी हमने इसको आपके सामने रखा है। How can I believe that the Bible is true? और सोचें कि आप ये कहें कि मैं कैसे यकीन कर सकता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो सच्चाई है। So let's find out why we believe that the Bible is true, God's final word to mankind. आए इसको देखते हैं कि खुदा के कलाम क्यों क्यों हम इस पे ईमान रखते हैं और किस तरह से ये एक सच्चाई का कलाम है और खुदा ने अब्दी कलाम बनी नो इंसान को दिया। आए इसको देखते हैं। Number one, the पहली बात, Bible speaks honestly about its heroes. बाइबल मुकद्दस जो है अपने जो सूरमा अशखास हैं उनके बारे में बड़ी ही ईमानदारी से बयान करती है। People want to hide the faults, the flaws, the mistakes of their heroes. अक्सर जो लोग हैं वो अपने जो हीरो होते हैं उनकी गलतियों को, उनके बड़े बड़े गुनाहों को और उनके जो मिस्टेक्स हैं या फॉल्ट हैं उनको अक्सर छुपाते हैं।
But Bible speak honestly. लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है बड़े ही ईमानदारी के साथ उन तमाम को भी बयान करती है। Bible speak about the sins of Abraham, Noah, David, Samson, Peter. इसी तरह से बाइबल मुकद्दस जो है जैसे इब्राहिम के गुनाह के बारे में या दाऊद के गुनाह के बारे में या समसून के गुनाह के बारे में या पतरस के गुनाह के बारे में बड़ी ही वाज़ेह तौर पे हमें बताती है। They are the heroes in the Bible. और ये बाइबल मुकद्दस में खुदा के सूरमा हैं। But Bible speak that they also sin against God. Bible tells us they also made mistakes. लेकिन बाइबल मुकद्दस बड़े ही वाजिया तरह हमें बताती है कि ये भी हैं तो ये खुदा के सूरमा खुदा के लोग, लेकिन इनसे भी गुनाह सरजद हुए और वो इस तरह की सिचुएशन में चले गए कि उनसे भी गुनाह हुआ, Because they were human beings. क्योंकि वो एक जिस्म रखते हैं, वो इंसान हैं। It's only Jesus Christ who is without sin. देखें बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है खुदा यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती हैं जो गुनाह से मुबर्रा हैं। So first thing, we believe that the Bible speak honestly. और पहली जो चीज हमने सीखी कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जो है वो बड़ी ही ईमानदारी से हमें सच के बारे में बताता है, बड़ी ही ईमानदारी से हमें बयान करता है। Now, number two, God preserve His word. और दूसरी जो बात है कि खुदा का कलाम जो है वो खुद खुदा के रूह से निकली हुई बातें हैं। God preserve it. God protected His word. और खुदा अपने कलाम की खुद हिफाजत करता है। That's why the Bible say, heavens and earth shall pass away, but my word will never pass away. और इसी तरह से क्यों क्यों बाइबल मुकद्दस जो है हम इस पे ईमान रखते हैं, ये सच है, इसलिए खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। So please read that Isaiah chapter 40 and verse number 8. Sister, you can read that. Okay. So Chapter 40 and verse number 8. Isaiah 40 and 8. The Bible हाँ, says, yeah, go ahead. खुदा के कलाम में लिखा है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब्बद तक कायम है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Oh, that's so powerful. Okay. And then the Bible has an amazing unity, an amazing order. और देखिए बाइबल मुकद्दस जो है उसमें एक अजीम तरह की यूनिटी जो है, मुत्तहिदी जो है वो पाई जाती है, और इसमें जो तरतीब है वो बड़ी जबरदस्त है। Let me give you another example. आए एक और मिसाल को हम देखते हैं। Psalm 22, Psalm 23, and Psalm 24. इसी तरह से जबूर में से हम देखते हैं जबूर 22, जबूर 23 को हम देखेंगे और इसी तरह जबूर 24 को। Okay. You know that Psalm 24 talks about what? और देखें कि जबूर 24 हमें किस बात के बारे में बताते हैं, खुदा का कलाम हमें किस बात की तरफ इशारा करते हैं। We sing that Zabur a lot, Zabur 24. और देखें कि जबूर 24 जो है हम इबादत में बहुत ज्यादा इसको गाते हैं। 24 जबूर Yes. रब On- खुदावंद बादशाह है। Yes. हम्म। So it talks about what? और देखें कि जबूर 24 जो है वो किसके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है, सिखाता है।
that there is a king. और ज़बूर 24 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक बादशाह है। Okay. And Psalm 23, beautiful psalm. और इसी तरह से ज़बूर जो 23 है वो भी बहुत जबरदस्त ज़बूर है। It talks about the Lord is my shepherd. और ज़बूर 23 जो है इसमें खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है वो हमारा अय्याली है। Okay. Then Psalm 22. इसी तरह ज़बूर 22वीं में हम देखते हैं, 22वें ज़बूर में Here we see the crucifixion of Jesus. Hello. और ज़बूर 22 जो है ये हमें यीशु अलमसीह की मसलूबियत के बारे में हमें बताता है। और यहाँ पे हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में हमें मिलता है। So this Can you is hear the me, sir? messianic psalm that talks about Jesus' crucifixion. और यहाँ पे इस ज़बूर में हमें खुदा यीशु और मसीह की मसलूबियत के बारे में हमें मिलता है। So Jesus has 3 titles. और यीशु मसीह के बारे में 3 जो है वो टाइटल हैं बाइबल मुकद्दस में, Prophet, king, and priest. यानी एक नबी, एक बादशाह और एक काहिन। And here we find all 3. In और these यहाँ psalms, इस 22वें ज़बूर में हम इन तीनों जो टाइटल हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में जो जी इस ज़बूर में yeah, Psalm 24 talks about king. Jesus is king. यानी ज़बूर 24 जो है वो हमें इसमें इस बात को बयान किया गया है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो एक बादशाह की हैसियत रखते हैं, यानी वो बादशाह हैं। So Psalm 22, Psalm 23, and 24 speak about Jesus' title as prophet, priest, and king. और ज़बूर 22, 23 और ज़बूर 24 जो है खुदा यीशु मसीह के तीनों दर्जात के बारे में बताते हैं। यानी यीशु मसीह जो है वो नबी भी है, खुदा यीशु मसीह एक काहिन भी है और खुदा यीशु मसीह एक बादशाह है। It also speak about what Christ has done, what Christ is doing now, and what he will do in future. और इन ज़बूरों के अंदर हम इस बात को भी पाते हैं कि खुदा यीशु क्या किया और क्या वो अभी हाल में कर रहे हैं और फिर मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में वो किस तरह लोगों के साथ यानी अदालत के लिए आएंगे। And of course, we know that he is the King of Kings and the Lord of Lords. और बेशक खुदा यीशु और मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा हैं। So you see here the order. और देखें कि यहाँ पे किस तरह एक तरतीब मौजूद है। Psalm 22, Psalm 23, Psalm 24. यानी Okay, ज़बूर 22, ज़बूर 23 और ज़बूर 24 में क्या जबरदस्त तरतीब है। so 40 different authors, 3 different continents, यानी 3 different languages. यानी 40 मुख्तलिफ मुसन्नफीन ने इसको लिखा और ये 3 मुख्तलिफ बरे आज़मों में इसको लिखा गया और इसी तरह से 3 मुख्तलिफ ज़बानों में बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम को लिखा गया। But still it's one book.
लेकिन ये देखें कि ये 40 मुसन्निफीन है और तीनों ज़बानें, लेकिन ये मजमुआ एक ही किताब है। The first book of the Bible is so connected with the last book of the Bible. और जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है वो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब के साथ जुड़ी हुई है और इनमें एक रब्त और तलक मौजूद है। In the first book of the Bible, God created heaven and earth. और बाइबल मुकद्दस में हम पहली किताब में देखते हैं कि खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। In the last book of the Bible, God is going to create new heaven and new earth. और बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब में हम ये इस बात को पाते हैं कि खुदा जो है वो एक नया आसमान और एक नई जमीन को तख्लीक करने वाला है। In the first book of the Bible, we see God was having fellowship with man, with Adam and Eve. और बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में हम देखते हैं कि वहां पे जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो वहां पे खुदा जो है आदम और हवा के साथ रफाकत रखना चाहता है। And now that relationship was broken. लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये जो तलक है, ये जो रफाकत है, वो टूट जाती है। In the last book of the Bible, we see that fellowship is restored. Now we are having fellowship with Father, with God. और फिर हम आखिरी किताब में ये देखते हैं कि वो टूटा हुआ रिश्ता जो है वो खुदावंद उसको बहाल करने वाला है और वो टूटी हुई रफाकत जो है वो फिर जुड़ने वाली है। हालेलुया। Because of sin, pain came, suffering came. और चूंकि गुनाह की वजह से दुख और मुसीबत जो है वो आई। In the book of Revelation, no more pain, no more sorrow. लेकिन बाइबल मुकद्दस में से आखिरी किताब मुकाशवा में बताया गया कि अब जब नया आसमान और नई जमीन होगी तो उसमें किसी तरह का कोई दुख भी और किसी तरह का कोई गम नहीं होगा। In the first book of the Bible, we see death. और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में हम देखते हैं कि वहां पे मौत आ जाती है। In the book of Revelation, no more death. लेकिन मुकाशवा की किताब में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि फिर मौत हरगिज ना होगी। You see how the first book is connected to the last book of the Bible? और देखें कि बाइबल मुकद्दस की जो पहली किताब है किस तरह से उसमें चीजें जो हैं वो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके अंदर एक बकायदा रब्त मौजूद है। The Bible is open to scrutiny, examination. और बाइबल मुकद्दस जो है उसमें जो The Bible is आजमाइश है, open to the Bible, we can say like that people can examine, people can question God's word. We are not afraid of that. We don't mind. और बाइबल मुकद्दस जो है उन लोगों के लिए एक इम्तिहान की हैसियत रखती है जो कि और एक sister. सवाल है। Yeah, people can ask question about Bible. यानी बाइबल मुकद्दस के बारे में लोग सवालात उठाते हैं। It's okay, no problem. We have no problem. बेशक वो उनके जहनों के अंदर कोई सवाल है लेकिन हमें इससे कोई मसला नहीं है। This is the beauty of God's word, that the Bible is open to examination. People can ask question about God's word, and we should not be afraid of that. ये बहुत जबरदस्त बात है कि खुदा के कलाम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि बेशक लोगों के जहनों के अंदर ये सवालात हैं बाइबल मुकद्दस के बारे में, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर हर एक सवाल का जो जवाब है वो मौजूद है और हम इस बात से बिल्कुल खौफजदा नहीं हैं। For example, if somebody start to question some other religious book, people get so mad. Those people who have that religious book, they get so mad. They don't want that people ask questions about their book.
और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस जो है उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ तरह के अपनी मजहबी किताबें रखते हैं उनके लिए शायद हम जो बाइबल मुकद्दस रखते हैं हम उनके लिए मैट हो सकते हैं. इज इट राइट? Yeah, people get mad, some other, people with some other religious book, they get mad when you ask question about their religious book. यस. और देखें जो दूसरे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह के मजहब रखते हैं, अगर कोई उनसे कोई भी सवाल उनके मजहब के बारे में करता है तो वो बिल्कुल जुनूनी हो जाते हैं और इस मामले में कि उनसे उनके मजहब के बारे में कोई सवाल किया गया है. But we are not afraid. लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हैं. Once you have the truth, you don't need to be afraid. And the Bible is God's truth. क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये मुकम्मल सच्चाई है, इसलिए हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है. So also the word history prove the truth of the Bible. और इसी तरह से जो खुदा का कलाम जो तारीख को साबित करता है. The history proves. यस. The और word बाइबल मुकद्दस की history. जो Uh-huh. यस और खुदा के कलाम की जो तारीख है वो खुदा के कलाम को साबित करती है. Yeah. We can find from the pages of world history, the things that are mentioned in the Bible are also mentioned in the world history. और इसी तरह से तारीख में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके बारे में जब हम जानते हैं तो वाकई उस तारीख को हम बाइबल मुकद्दस में से भी देखते हैं और खुदा का कलाम भी हमें उनके बारे में बताता है. Yes. So there are historical facts, there are archaeological facts that prove the truth of the Bible. और देखें तारीख भी और इस बात को साबित करती है कि खुदा के कलाम के बारे में और जो मुख्तलिफ तरह के अदवार जो हैं जिसे जैसे सदियां हैं गुजरी और मुख्तलिफ तरह के अदवार आए वो भी बाइबल मुकद्दस के सच को साबित करती हैं. For example, when the Bible says there was a flood, Noah's flood, there was a worldwide flood. Also, the world history tells us that there was a universal flood. और मिसाल के तौर पे जैसे तारीख हमें बताती है कि माजी में एक बड़ा तूफान आया जो कि नूह का तूफान था. और वाकई जब हम बाइबल मुकद्दस में से इसको पढ़ते हैं तो वो तारीख जो बताती है वो बाइबल मुकद्दस के साथ यानी इस खुदा का कलाम जो है उसको साबित करती है, हिस्ट्री साबित करती है खुदा के कलाम में जो बड़े तूफान जो पूरी कायनात में आया यानी नूह का तूफान आया इसको साबित करती है. For example, the history tells us, and we have found that from a clay tablet that was found in Yemen, the country of Yemen. And in that clay tablet, it was written that a woman went to Egypt to buy grain. A rich woman who went to buy grain from Egypt. What word we can made it simple? Clay tablet. Okay, clay tablet. You know that you write something on that clay tablet. You make something of clay, and then people used to write on that clay. Let me show you the clay tablet. Okay.
मट्टी की तख्तियां। Yeah. Okay. You see here the clay tablet. People used to write on यस this kind of clay tablet. So जी, they मिट्टी have की तख्तियां। found, that's right. So they have found this kind of tablet यस in Yemen, in the country of Yemen. Mhm. Go ahead. और एक जो अमीर औरत थी वो अनाज को खरीदने यमन में आई और वहां पे उसने ये मिट्टी की जो तख्तियां थी ये उसको मिली। Let me say it again. So they have found this kind of clay tablet, ओके and on that clay tablet it is written. Go ahead, sister. यस और ये जो मिट्टी की तख्तियां जब उनको मिली तो इन तख्तियों के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। That a rich woman went to Egypt और ये अमीर जो औरत थी वो मिस्र के अंदर आई and she went there to buy grain from the man called Joseph. और यहाँ पे जो औरत थी वो अनाज खरीदने के लिए यूसुफ के पास आई। So we know that in the Bible we find there was a man called Joseph who was the prime minister और in Egypt. और ये देखें कि हिस्ट्री में हमें ये मिलता है कि एक औरत जो थी वो अनाज खरीदने यूसुफ के पास आई, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यूसुफ जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर उसका बकायदा एक करैक्टर मौजूद है जो कि मिस्र का Prime वजीर minister. आजम बना। Yeah, यस yes. वजीर आजम बना। And there was a famine, and many people went to Egypt to buy grains. और वहां पे बहुत सारे लोग जो थे वो मिस्र में आए ताकि अनाज को खरीद सकें। So you see here how those archaeological things, old finding things, और prove the reality and the truthfulness of the Bible. और देखें कि हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह तारीख दान जो है वो चीजों को अ, देखते हैं, दरियाफ्त करते हैं और वो तमाम की तमाम चीजें जो वो तारीख दान बताते हैं वो पहले से बाइबल मुकद्दस उनको बयान करती है। For example, the reality of the existence of Jesus. और देखें कि जो हकीकत है खुदा यीशु मसीह का आना इस दुनिया में मुजस्सम होना एक हकीकत है। Couple of years ago, one man was a very famous man, without mentioning his name. One man was telling that Jesus is not historical figure. और दो साल पहले की बात है कि एक शख्स बहुत मशहूर हुआ और उसका नाम जो है वो बयान नहीं हुआ। वो शख्स ने बताया कि यीशु मसीह जो है वो कोई तारीखी एतबार से कोई हैसियत नहीं रखते, Yeah, uh, यानी तारीख के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं है। yeah. We don't want to mention the name of that man, but just we want to make that point that he was saying that Jesus is not historical figure. और यहाँ पे हम उस आदमी का नाम तो नहीं पाते, लेकिन हम उसके बारे में जो कुछ उसने कहा कि यीशु मसीह जो है वो कोई तारीख में उसका जिक्र नहीं है। And even in his religious book, Jesus is mentioned. We know हत्ता that. कि उनकी जो मसीही किताब है, हत्ता कि उनकी जो मसीही किताब है उसमें खुदा यीशु मसीह के बारे में बकायदा से जिक्र है और उसके बारे में हम जानते हैं। And to deny that Jesus is not a historical figure, it means he is denying his own book. और ये देखें कि वो ना सिर्फ यीशु अल मसीह की तारीखी अहमियत को वो इसका इनकार कर रहा है, बल्कि वो इस बात से भी इनकार कर रहा है
ये जो कोई बुक है, किताब है जो खुदा यीशु मसीह का बयान करती है, वो So we इस know that Jesus में is इनकार कर रहे हैं। historical figure. He is not a mythical figure. Jesus is historical और figure. हम इस बात को जानते हैं, और हम ये जानते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह तारीखी हैसियत रखते हैं। ना सिर्फ तारीख से वो हैं, बल्कि वो अब्दियत, जिसका मतलब है खुदा यीशु मसीह अब्दियत रखते हैं। So we see that um, in the Jewish history, Jesus is mentioned. In the Roman history, Jesus is mentioned. In the Greek history, Jesus is mentioned. और देखें, हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो तारीख, यानी यहूदियत की जो तारीख है, उसमें भी इसका जिक्र है। खुदा यीशु मसीह का रोमी हिस्ट्री में भी जिक्र है, और इसी तरह यूनानी हिस्ट्री के अंदर भी खुदा यीशु मसीह के बारे में बड़ी वाज़िया तौर पे बताया गया है। And the resurrection of Jesus Christ is the historical reality, historical fact that we find not only in the biblical history, but in the Roman history, in the Greek history, in the Jewish history. और इसी तरह खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जो है, वो भी एक तारीखी हैसियत रखता है, जिसका हमें इस तरह से जिक्र मिलता है कि यहूदी तारीख के अंदर भी, रोमी तारीख के अंदर भी, यूनानी तारीख के अंदर भी ये एक तारीख मौजूद है। So that's why I can believe that the Bible is true. और यही वजह है कि मैं ईमान रखता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो सच है। Scientific evidences prove the truth of the Bible. इसी तरह से साइंसदान और जो दलाइल के साथ वो इस बात को साबित करते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो सच्ची किताब है। You can write down all these references, and then next time we will be talking more into detail. और आप इन तमाम हवालाजात को लिख सकते हैं, और फिर आइंदा जब भी वक्त हमारे पास होगा, हम इन हवालाजात के बारे में मुकम्मल तफसील पे बात करेंगे। And I will elaborate more that the prophecies, fulfilled prophecies, prove the truthfulness of God's word, the authenticity of God's word. और फिर हम उन तमाम नबूवतों के बारे में, पेशन गोइयों के बारे में भी बात करेंगे, और किस तरह से वो साबित हुई, इसके बारे में भी मुकम्मल तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे। It's very exciting topic. How can I believe that the Bible is true? और ये बड़ा ही खुश आइन उन्वान है कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस, किस तरह से हम ईमान रख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस एक सच है। And we have highlighted a number of things. So please write down the summary and also collect, stuff from your own research. Do your own research, and even read a book about the truthfulness of the Bible. और इसी तरह से बहुत सी चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं जिनको हाईलाइट किया है, और आप इन तमाम के बारे में आप हवालाजात को जमा कर सकते हैं, उनके बारे में आप एक खुलासा लिख सकते हैं, लिखेंगे, और इसके बारे में जो कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पे बात करती है ये हवालाजात। और फिर एक बुक जो है आप उसको जरूर पढ़ें, यानी कि ट्रूथफुलनेस Of the Bible. Yes. ऑफ द बाइबल, Yes. यानी बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां, इस किताब को आप पढ़ें। I get very excited when I speak about Bible and Jesus. These are my और मैं main बहुत topic. I get very excited. हालेलुया। जब हम देखते हैं डॉक्टर चार्ल्स को पढ़ाते हुए, तो हम इस बात को फील करते हैं कि वो किस तरह पुरजोश हो जाते हैं, और कि जब खुदा के कलाम के बारे में और बिब्लियोलॉजी यानी इल्मुल किताब के बारे में वो पढ़ाते हैं, तो खुदा के खादिम कहते हैं कि मैं पुरजोश हो जाता हूँ, खुशी से भर जाता हूँ।
Lovely. So God bless you. And where the teacher's work start, from there the students' work start. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जहाँ पे जो उस्ताद हैं वो जब वो ईमानदारी से काम करने लगते हैं तो वहाँ पे जो You know, सीखने वाले where हैं, तालिब इल्म हैं, yeah, शागिर्द हैं, वो भी where the उसी तरह teacher's से work, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। yeah, where the teacher's work stop, the students' work start. ओके। और जहाँ पे उस्ताद जो है अपने काम को खत्म करता है, वहां पे जो शागिर्दों का है वो काम शुरू हो जाता है। Now I stop here and your work start now. और मैं अब जो तालीम है उसका इख्तिताम करूंगा, और इसका मतलब यही है फिर आपका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। Amen. God bless you. Thank you, dear sister, for this beautiful translation. थैंक यू सर। It was a wonderful flow and good communication. थैंक यू सर। God bless you. And I think dear brother Imran is there, and Pastor Khalid should be there as Yes, sir. well. I'm available, sir. I know. I hear थैंक यू your जीसस। voice. Thank you. Thank you. Okay, God bless. See you soon. खुदावंद आपको Bye-bye. बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सर। God bless.